Good morning, students. I am going to start again the new prose chapter from your first flight textbook, page number 73, the continuation of the lesson 100 dresses 1. This is the second part of the lesson, the 100 dresses part 2. This is part 2 of the lesson here. So, just today I am going to start the lesson for you. The introduction of this lesson. In continuation of the previous lesson, the 100 Dresses 2 reveals why Vanda Petronsky had not been coming to school. The Petronsky family decided to move to a big city where no one could care about their unfamiliar name. On hearing the note, Maddie and Peggy got anxious as they realized that they would never get a chance for making amends for all the teasing they had done. Both the girls revealed only on learning that Vanda liked them and had dedicated one of the 100 dressed drawings to each one of them. हम इस चैप्टर में अब ये देखेंगे कि कैसे वैंडा पेट्रोन्स्की अब क्यों नहीं आ रही है. उनके फादर ने एक नोट लिखा और कहा कि वो लोग एक बड़े शहर में जा रहे हैं जहाँ शायद कोई लोग उन्हें उनके नाम से नहीं चिढ़ाएंगे क्योंकि वहाँ लोगों को किसी को कुछ परवाह नहीं है. फिर यहाँ पे जो दोनों गर्ल्स हैं वो फील करती हैं कि अब उनको वो चांस नहीं मिलेगा कि वो वैंडा पेट्रोन्स्की के सामने अपने अपोलोजाइज़ करें, शर्मिंदगी को एक फेस करें और कहें कि वी आर सॉरी फॉर ऑल द टीजिंग दे हैड मेड इट टू वैंडा पेट्रोन्स्की. और फिर एट लास्ट उन्हें पता चलता है कि वैंडा पेट्रोन्स्की उन्हें कितना पसंद करती थी. लास्ट में जब वो एक एक ड्राइंग्स उन्हें डेडिकेट देकर चली जाती है. A small brief summary of this chapter here. This lesson begins with all the students of room number 13 having a look at the wonderful drawing of Vanda Petronsky. Only then a note is received by Miss Messon from Vanda's father, informing that none of the two children will attend the school as they had moving to a big city where no one would judge them for their names. Miss Messon felt shocked and conveyed her disappointment of the class. Maddie was affected by the letter of Vanda's father. She instantly developed an urge to apologize to Vanda. Peggy and Maddie, the two best friends, rushed to Booking Heights, hoping that the family hadn't moved yet. But to their dismay, there was no sign of life in and around the house. Maddie lost her sleep thinking that a crowd how couldn't stand against the wrong. That day she decided that she will never let anyone tease someone like that again. That weekend, Peggy and Maddie decided to write a letter to Vanda that was originally meant to be apologized, but they ended up writing a friendly note asking her how did she like the new place. Weeks passed by and there was no reply until one day, near Christmas, Miss Messon announces that she heard from Vanda. In that letter, Vanda wrote she misses everyone and conveyed her intention of gifting one dresses each to Maddie and Peggy because she was a whole new lot of 100 dresses lined up in her new house. Both of them were happy to receive it and later realized that it was their face she had drawn along with the dresses. Thus they both conclude that Vanda did like them. I am going to continue the chapter page wise explanation now. Page number 73. While the class was circling the room, the monitor from the principal's office brought Miss Messon a note. Miss Messon read it several times, studied it thoughtful for a while. Then she clapped her hands. Attention class, everyone back to their seat. When the shuffling of feet and stopped that the room was still and quiet, Miss Messon said, I have a letter from Vanda's father that I want to read to you. Miss Messon stood there a moment and the silence in the room grew tense and expectant. The teacher adjusted her glasses slowly and deliberately. Her manner indicated that was coming. This letter from Vanda's father was a matter of great importance. Everybody listened closely as Messon read the brief note. What was the note here? We are going to see. Dear teacher, my Vanda will not come to your school anymore. Jack also. Now we move away to a big city. No more holler Polak.
No more ask why funny name. Plenty of funny names in the big city. Yours truly, जैन पेट्रोन्स्की। अब हम इस चैप्टर में अब ये देख रहे हैं इस सेकेंड पार्ट में कि कैसे वहाँ पर जो है यहाँ पर मॉनिटर जो है प्रिंसिपल ऑफिस से आता है और एक लेटर लेके आता है और मिस मेसन को हैंड ओवर करता है। वो जब देखती हैं तब वो पूरी क्लास को साइलेंट होने को कहती हैं और पूरी क्लास साइलेंट हो जाती है। टीचर जो है अपने ग्लासेस को सबको एडजस्ट करके लेटर पढ़ती हैं। वो वैंडा के फादर के द्वारा लिखा हुआ लेटर होता है। वो नोट देते हैं कि अब से वैंडा और उनका जो ब्रदर है वो स्कूल नहीं आएंगे क्योंकि वो बड़े शहर में शिफ्ट हो रहे हैं और वहाँ शायद उन लोगों को उनके फ़नी नेम से और किसी भी कारण से उन्हें नहीं चिढ़ाएंगे क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोगों के ऐसे ही फ़नी नेम्स होते हैं। किसी के पास इतना समय नहीं है कि ऐसे व्यर्थ बातों में अपना टाइम वेस्ट करें। अब पूरी क्लास यहाँ पर इस लेटर के बाद साइलेंट हो जाती है। अ डीप साइलेंस मेट द रीडिंग ऑफ दिस लेटर। मिस मेसन took off her glasses, blew on them and wiped them on her soft white handkerchief. Then she put them on again and looked at the class. When she spoke, her voice was very low. अब क्या हुआ, वो लेटर पढ़ने के बाद शायद जो टीचर हैं उनकी आंखें भी नम हो गई थी। अब उन्होंने अपने ग्लासेस को उतारा, वाइप किया, अपने हैंडकरचिफ से वापस पहना और जब वो बोल रही थी क्लास में तो उनकी आवाज़ भी बहुत लो हो गई थी, भारी गला भर गया था शायद उनका। आई एम श्योर दैट नन ऑफ द बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द रूम 13 वुड purposely and deliberately hurt anyone's feeling because his or her name happened to be a long unfamiliar one. अब यहाँ पे जो मिस मेसन जो टीचर हैं वो कहती हैं कि मैं विश्वास कर रखती हूँ, पूर्ण विश्वास है मुझे कि मेरे क्लासरूम में से किसी ने भी इस टाइप का टीजिंग किसी बच्चों के साथ नहीं किया होगा जिनके नाम इतने लॉन्ग और अनफेमिलियर होंगे। I prefer to think that what was said in the thoughtlessness. I know that all of you feel the way I do, that this is very unfortunate thinking to have happened, unfortunate and sad both, and I want you all to think about it. यहाँ पे जो टीचर है बच्चों से कहती हैं कि मुझे जो लग रहा है शायद आप लोगों को भी लग रहा होगा। उनके फादर ने बिना सोचे समझे शायद ऐसा कुछ लिख दिया है और मैं समझती हूँ कि ऐसा कुछ यहाँ हुआ नहीं होगा, ऐसा होना भी नहीं चाहिए था। अगर हुआ है तो आप लोगों को बहुत वापस सोचने की ज़रूरत है। द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड। मैडी ट्राइड टू प्रिपेयर हर लेसन्स बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क। शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक. True, she had not enjoyed listening to Peggy ask Vanda how many dresses she had in her closet, but she had said nothing. She had stood by silently, and that was just as bad as what Peggy had done. Worse, she was a crowd. At least Peggy hadn't considered they were being mean, but Maddie had thought they are doing wrong. She would put herself in Vanda's shoes. अब यहाँ पे फर्स्ट पीरियड चल रहा था, वो पढ़ाई का पीरियड था, मगर मैडी अपना पूरा कंसंट्रेशन उस पढ़ाई में नहीं लगा पा रही थी क्योंकि उसके अंदर एक फीलिंग थी, गिल्ट फीलिंग थी कि उसने कभी भी पैगी को स्टॉप नहीं किया वैंडा को इस तरह से चिढ़ाने से, क्योंकि उसे क्या लग रहा था अगर वो ऐसा करेगी तो शायद वो अपने आप को इस ट्रबल में डाल देगी, उसके साथ कभी कोई ऐसा टीज़ ना कर दे, क्योंकि वो भी हमेशा किसी की दिए हुए कपड़े या दी हुई चीज़ों को ही ऑल्टर करके पहना करती थी। उसे ये लगता था कि कहीं उसके साथ ऐसा कुछ ना हो जाए, इसलिए वो अपने आप को गिल्ट फील कर रही थी। उसे लग रहा था वो सिर्फ भीड़ बन के वहाँ खड़ी थी, साइलेंटली ऑब्जर्व कर रही थी, कभी उसमें हिम्मत नहीं हुई कि उस चीज़ को प्रोटेस्ट कर रोक दे कि वो जो कर रही है बिल्कुल गलत है। गुडनेस, wasn't there anything she could do? If only she could tell Vanda she hadn't meant to hurt her feelings. She turned around and stole a glance at Peggy, but Peggy did not look up. She seems to be studying hard. Well, whether Peggy felt badly or not, Maddie had to do something. She had to find Vanda Petronsky. Maybe she had not yet moved away. Maybe Peggy would climb the heights with her, and they would tell Vanda she had won the contest, that they thought she was smart and the 100 dresses were beautiful. जब यहाँ पर ये चीज़ें सब पैगी के यहाँ पे मैडी के दिमाग में चल रही थी, तब वो सोच रही थी, कह रही थी, देख रही थी कि उसे वैंडा के लिए कुछ करना चाहिए। उसके अंदर वो फीलिंग्स थी, वो हर्ट हो रही थी कि उसने ऐसा बर्ताव उसके साथ क्यों किया। अब वो टर्न होकर पैगी की तरफ देख रही, लेकिन पैगी की का ध्यान पूरा पढ़ने में था, वो कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ाई कर रही थी। वो मैडी का ध्यान बिल्कुल नहीं लग रहा था। मैडी को लग रहा था कि उसे वैंडा पेट्रोन्स के लिए कुछ करना चाहिए। वो अभी तक शायद गई नहीं होगी, तो उसके पास जाकर उसे कह देना चाहिए कि तुमने कॉन्टेस्ट जीता है और शायद पैगी भी मेरे साथ चल दे और उसे कहें कि तेरे जो 100 ड्रेसेस बनाए हैं तुमने वो बहुत ही सुंदर हैं। When school was dismissed in the afternoon, Peggy said with pretended casualness, "Hey, let's go and see if that kid has left town or
नॉट। अब क्या हुआ, जैसे ही क्लास ख़त्म हुई तो स्कूल डिसमिस हुआ, तो उस आफ्टरनून पैगी ने कहा कि चलो हमें जाके देखना चाहिए कि कहीं वो वहाँ से गई तो नहीं है वैंडा पेट्रोन्स की। सो पैगी हैड द सेम आइडिया। मैडी ग्लोड, पैग वॉज रियली ऑल राइट। फिर उसे भी यही लगा, किससे, मैडी को, कि पैगी के अंदर भी यही चल रहा था, पैगी वाकई में सही बोल रही है, वो खुश हो गई, वो दोनों शायद वहाँ जाने के लिए तैयार हो गए। द टू गर्ल्स हरीड आउट फॉर द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टूवर्ड बुकिंग हाइट्स, द पार्ट ऑफ द टाउन दैट वोर सच अ फॉरबिडिंग एयर ऑन द काइंड ऑफ अ नवंबर आफ्टरनून, ड्रीजी, डम्प एंड डिसमे। अब दोनों जो गर्ल्स हैं वो बहुत दौड़ती हुई, भागती हुई उन तंग गलियों से बुकिंग हाइट्स पर पहुँची। वहाँ नवंबर का आफ्टरनून था, हवाएं बिल्कुल कैसी थी, वेट थी, सैड क्यों थी, क्योंकि उनका मन जो है दुखी था, तो सब एटमॉस्फेयर उन्हें सैड लग रहा था। और वेल एट लास्ट सेड पैगी ग्रफी, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरेनर और मेक फन ऑफ हर नेम। अब पैगी कहती है एटलीस्ट कि मैंने कभी उसे उसके नाम से या फॉरेनर से ऐसा कुछ नहीं चिढ़ाया। आई नेवर मे थॉट दैट शी हैड द सेंस टू नो वी आर मेकिंग फन ऑफ हर एनी वे, आई थॉट शी वॉज टू डम एंड गी लुक हाउ शी कैन ड्रू। मुझे लगा कि उसे पता ही नहीं चल रहा है कि हम उसे चिढ़ा रहे हैं, और मुझे नहीं पता था कि इतनी वो स्मार्ट है, इतनी सुंदर वो ड्रॉ कर सकती है। देखो आपस में दोनों गर्ल्स वो बातें कर रही थी। मैडी कुड से नथिंग, ऑल शी होप्ड वॉज दैट दे कुड फाइंड वैंडा। अब मैडी कुछ बोल नहीं पा रही थी क्योंकि उसके मन में बहुत ज़्यादा गिल्ट था कि उसने कभी पैगी को रोका नहीं, क्योंकि उसे पता था कि शायद वैंडा कितना बुरा फील कर रही है, क्योंकि वो भी उसी दौर से गुजर रही थी। मगर मैडी कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस वो प्रे कर रही थी कि उन्हें वहाँ पर वैंडा मिल जाए। शी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन her and how wonderful the whole school thought she was, and please not to move away, and everybody was who was not nice. The two girls hurried on and they hoped to get the टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क। अब वो मैडी के मन में यही चल रहा था, बस वहाँ पे वैंडा मिल जाए, उसे कह दें कि वो सॉरी हैं, उन्होंने जब उसके ऊपर चिढ़ाया, और पूरा स्कूल उनकी तारीफ़ कर रहा है, प्रशंसा कर रहा है, कितने अच्छे उसने सुंदर ड्रेसेस बनाए हैं। और वो दोनों भी, वो पैगी भी सोच रही थी कि अंधेरा होने से पहले शायद वो बुगिन हाइट्स तक पहुँच जाए। आई थिंक दैट्स वेयर द Tronsky live, said Maddie, pointing to a little white house. Wisp of old grass stuck up here and there along the pathway like thin kittens. The house was its sparse little yard, looked shabby but clean. It reminded Maddie of Vanda's one dress, her faded blue cotton dress, shabby but clean. थोड़ा वहाँ पर फिर जाने के बाद उसे लगा, मैडी को लग गया कि देखो ये है ट्रॉन्स्की का घर। शायद वो घर कैसा था, वो छोटा सा सफ़ेद घर था, हर जगह ग्रासेस थे, बहुत मुश्किल से रास्ता था, मगर वो हाउस जो था बहुत शैबी था, मतलब चीज़ें अस्त व्यस्त थी मगर बहुत क्लीन थी। वो चीज़ जो क्लीनलीनेस की जो थिंकिंग थी वो मैडी के दिमाग में आई, वही चीज़ जो वैंडा हमेशा एक ही ड्रेस पहन के आती थी, वो फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस, वो शैबी रहती थी मगर क्लीन होती थी। There was not a sign of life about the house. Peggy knocked firmly on the door, but there was no answer. She and Maddie went around to the backyard and knocked there. Still there was no answer. अब वो दोनों गर्ल जो है घर के आसपास जाती हैं, दरवाज़ा बजाती हैं, सब कुछ करती हैं, मगर वहाँ पे कोई भी नहीं दिखता, घर में कोई भी नहीं था। वो बैकयार्ड जाकर भी देखती है, वहाँ भी हर जगह साइलेंस था, उन्हें कोई आंसर नहीं मिल रहा था, यानी उनके घर पे अब वहाँ पर कोई नहीं है। हम अब आगे इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।